Assalamualaikum students. Welcome back after a long break. Today we will study about excretion, our chapter number 11. It is a kind of revision because we have had some problems in this chapter before. So when it comes to excretion, we have gone through homeostasis and we have also studied about respiration. So we can now better understand this content at this stage. When it comes to excretion, excretion is actually the removal of waste material. Removal of waste from body. So when it comes to waste material, तो ये waste material किसी भी form में हो सकता है. When it comes to excretion, the excretion में हम typically यहाँ पे just kidneys को और kidneys definitely we all know urine produce करते हैं, and urine is a waste product. It's actually a nitrogenous waste product. Nitrogenous क्यों? Because it contains nitrogenous compounds. It contains nitrogen. और वो कौन-कौन से होते हैं? यूरिया and uric acid. अच्छा, हम इस चैप्टर को इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं. Accordingly, मुझे भी भूल गया इस दिन से बात आया. Okay, students, once again, Assalamu alaikum. We are studying about excretion. Once again, excretion क्या था भाई? It is removal of waste from the body. और वो waste किसी भी form में हो सकता है. But in this chapter, we are going to study about kidneys. Previously, हमने एक lecture लिया था इस chapter का. Then we moved into a new term. That is why I'm starting this chapter again. So kidneys में we know that kidneys are producing urine and urine is a nitrogenous waste product. हमें ये भी पता है कि nitrogenous क्यों बोलते हैं? Because it contain nitrogenous compounds. और वो कौन-कौन से हैं? Urea and uric acid. Creatinine भी होता है तीसरा एक. अच्छा, हम इन waste materials को body से remove करने के लिए we have kidneys. So अगर ये waste material body से remove नहीं होते तो क्या होगा? Usually जब हम waste materials की बात करते हैं और अगर हमारी body में accumulate कर जाते हैं तो वो accumulation eventually हमारे vital organs की death की वजह बन सकती है. और हमारे vital organs कौन-कौन से हैं? हमारा liver, lungs, heart, brain and kidneys. ये 5 vital organs हैं हमारे पास और ये वो waste materials हैं. Along with these हमारे पास और बहुत से waste materials हैं. जब हमने respiration पढ़ा था, respiration में जो respiration के बाकी के products हैं उनमें कुछ waste materials भी बन रहे होते हैं. So वो waste materials अगर body से नहीं निकलते तो वो हमारे vital organs को damage करते हैं. Okay. As far as this chapter is concerned, तो हमारे waste materials यही होंगे urea and uric acid जो कि urine की form में excrete हो रहे हैं in a liquid form. Furthermore, जो हमने homeostasis में पढ़ा था, we studied about sweating और perspiration. हमारी बहुत सारे waste materials through sweating भी lose किए जाते हैं. अच्छा, हम बहुत सारा salt भी lose कर जाते हैं. Along with those waste materials, हम बहुत सारा salt lose करते हैं. लेकिन sweating is also a form of excretion. दूसरा, हमने respiration में पढ़ा था exhalation. और exhalation में we are exhaling carbon dioxide. This carbon dioxide is lethal for our body. और हमारी body से कितनी carbon dioxide निकलती थी? We all know it was 4%. So 4%, 0.04% carbon dioxide को हम intake करते हैं, inhale कर रहे हैं और exhale कर रहे हैं 4% carbon dioxide को because we don't need carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, so हम इसे बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं. एंड फर्दरमोर अगर हमारी बॉडी का इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का मैकेनिज्म कह लो कि अगर इनफेक्टिव हो जाता है, कम काम करने लगता है, वी विल फील मोर फैटीग. हमारे तकरीबन सब ऑर्गन्स ही डैमेज होंगी इसकी वजह से, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लीथल एंड मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो एज फार एज एक्सक्रीशन इज कंसर्न्ड, सो हम एक्सक्रीशन का एक होलसम अब तक डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें वी नो दैट एक्सक्रीशन इज एक्चुअली द removal of waste from the body in the form of urine,
It can be in the form of sweating or exhalation. Okay, furthermore, हमारे पेजेस हैं 182 to 183. So 182 पे एक पर्सन का उसने जिक्र किया है, it is Mr. Lim. Mr. Lim have one failed kidney. और इस one failed kidney की वजह से, because we know that we have two kidneys, so एक failed kidney की वजह से he has to go through dialysis. और dialysis क्यों? Because हमें पता है किडनीज क्या करती हैं, किडनीज एक्चुअली फिल्टर आवर ब्लड, और वो फिल्टर क्या क्या कर रहे होते हैं भाई, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में डिफरेंट अदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं वो सब ब्लड के अंदर होते हैं, फिर वो ब्लड सब बॉडी में सर्कुलेट करता है, और वो सर्कुलेट करता करता कहां से गुजरता है, किडनी से. सो किडनीज के अंदर स्पेशल सीव्स हैं, जिसमें पोनी होती है चाय को पुनने के लिए. सो देयर आर स्पेशल सीव्स जो उन्हें उसे पुनती हैं, स्टेन करती हैं उसको. सो स्टेन करने के बाद क्लीन ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है. अच्छा, फर्दर मोर जब यहाँ पे लिम की एक किडनी फेल हो गई है और वो डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक बड़ी मशीन होती है, इट इज अ डायलाइजर मशीन. तो वो क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्टरी कट करते हैं, यहाँ से एक वेन कट करते हैं और उस मशीन के अंदर लगा देते हैं. तो सारा ब्लड उस मशीन में जाता है और वो मशीन किडनी का काम करती है. वो इतनी बड़ी मशीन एक तकरीबन 4 इंच की किडनी का काम कर रही होती है, और वो क्या करती है, बेसिकली हमारे जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मशीन उससे रिमूव कर देती है. एंड रिमूव करने के बाद वो सारा क्लीन ब्लड दोबारा बॉडी के अंदर आता है. और ये तकरीबन डायलिसिस में, एक नॉर्मल डायलिसिस जो है, इट टेक्स अबाउट 3 डायलिसिस पर वीक. एक नॉर्मल डायलिसिस में एक हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस करवाने पड़ते हैं. और उस पेशेंट को जस्ट लाइक मिस्टर लिम अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. मतलब आप पूरे एक दिन में जस्ट 1 गिलास पानी पीते हैं, वो वाला पेशेंट जो डायलिसिस करवा रहा है एक पूरे दिन में 1 गिलास पानी पिएगा. ही इज नॉट अलाउड टू ईट मोर. वो एक आधी रोटी खा सकता है, और हर चीज एक्सेप्शनली रिड्यूस हो जाती है, हर वो पेशेंट जो कि डायलिसिस करवा रहा है. ओके, व्हेन ही इज ऑन डायलिसिस, अच्छा क्वेश्चन ये है कि व्हाई ही इज ऑन डायलिसिस, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई डोनर मिल जाए ताकि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकें. सो एज सुन एज कि जब तक डोनर उन्हें नहीं मिलता तब तक वो डायलिसिस मशीन पर ही रहेंगे. नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी? जितना अभी तक हमने पढ़ा एक्सक्रीशन और मिस्टर लिम के बारे में, किडनीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड. किडनीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द ब्लड. 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है कि एक्सक्रीशन में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी. ओके, हमारे पास नेक्स्ट चीज है कुछ कॉमन डेफिनेशंस. अच्छा, जब वेस्ट प्रोडक्ट की बात आएगी ना, तो डेफिनेटली वेस्ट प्रोडक्ट किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो वो रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में जब रिएक्शंस की बात आती है तो हमारे पास 2 तरह की रिएक्शंस हैं. हियर आर कैटाबोलिक एक्टिविटीज एंड एनाबोलिक एक्टिविटीज. कैटाबोलिक एक्टिविटीज को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, वी नो दैट, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को. और एनाबोलिक एक्टिविटीज को हम एनाबोलिज्म कहते हैं. कैटाबोलिक इज एक्चुअली ब्रेकिंग. ब्रेकिंग मींस लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस. जस्ट लाइक आपने गोश्त खाया, सो गोश्त बड़ा मॉलिक्यूल था, प्रोटीन थी, सो सॉरी वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही इनटू स्मॉलर वंस. तो प्रोटीन का स्मॉलर यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड. और जो जब हम बात करते हैं स्टार्च की, पोटैटो फ्राइज खाए थे, सो वो स्टार्च था, इट्स एक्चुअली शुगर. सो वो पोटैटो के स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो बड़े मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन होना इज नोन एज कैटाबोलिज्म. अच्छा, एनाबोलिज्म इज एक्चुअली मेकिंग. कैटाबोलिक एक्टिविटीज यूजुअली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट से रिलेटेड है, लेकिन जब एनाबोलिज्म में आता है तो एनाबोलिज्म इज एक्चुअली, अच्छा देखो कट लग गया हाथ पे तो नए सेल्स बनने हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन है, इट इज मेकिंग, तो वो एनाबोलिज्म है. अच्छा, नई प्रोटीन्स बनेंगी, हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है, सो नई प्रोटीन्स, नए अमाइनो एसिड्स बनेंगे, वो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके एक प्रोटीन बनाएंगे एंड देन दे विल फॉर्म स्किन सेल्स, सो वो स्किन को ज्वाइन अप करेंगे, सो इट इज एनाबोलिज्म, मेकिंग कर रहे हैं.
Once again, catabolism is actually breaking of larger molecules into smaller ones. Anabolism is making of larger molecules using smaller ones. अच्छा, अगर हम इन दोनों एक्टिविटीज को कंबाइन कर दें, sum of you know this definition, sum of all chemical activities is known as मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म ये वो वर्ड है जो कि हमने अक्सर सुना है. भाई ग्रीन टी के कमर्शियल में मेटाबॉलिज्म का नाम आएगा. भाई ग्रीन टी पिए ताकि आपका वजन कम हो. क्यों? ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वजन कम होगा. इसके पीछे सारी साइंस क्या है कि जब आप ग्रीन टी पीते हैं, लेट्स टेक दैट एन एग्जांपल, वो ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को या आपकी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस की स्पीड तेज कर देती है. जब स्पीड तेज होती है तो कुछ कैलोरीज बर्न होती है. सो डेफिनेटली ग्रीन टी पी के आप किलोज में वजन लूज नहीं करोगे, मे बी कुछ मिलीग्राम्स में, लेकिन लूज करेंगे. सो मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली कि बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं ब्रेकिंग के और मेकिंग के, उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म प्लस anabolism. This was simple. Okay, next एक important fact है जो कि मे बी अक्सर को हमें से पता नहीं होता. It is the difference between excretion and egestion. जब हम यूरिन की बात करें, because mammals have two excretory products, जिसमें यूरिन है और फीसिस है. When it comes to urine, तो यूरिन एक excretory product है because क्योंकि वो सारा प्रोसेस कहाँ से होके आ रहा है, ब्लड जा रहा है किडनी से उसे फिल्टर कर रही है. फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर, और जो यूजफुल ब्लड है वो वापस सर्कुलेशन के अंदर. जब आते हैं हम फीसिस की तरफ, फीसिस आर नॉट एक्सक्रीशन. वो इसलिए क्योंकि हमने जो चीज खाई वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या गट में मूव कर रही है. उसमें से जितना भी जो न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड के अंदर. अब वो रिमेनिंग का पार्टिकल्स अंदर ही हैं. वो एक एक्सटर्नल मटेरियल था जो हमने बॉडी में इनटेक किया, और वो एक एक्सटर्नल मटेरियल जब उसमें कुछ भी यूजफुल एस्पेक्ट्स बाकी नहीं रहे, उसे हम बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं बिकॉज इट्स अ वेस्ट मटेरियल. तो उस वेस्ट मटेरियल की एक्सपल्शन को वी से इजेशन. अब हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन विद एग्जांपल. दिस इज वेरी सिंपल. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम यूरिनरी सिस्टम पे. ओके भाई, मैमल्स में जो यूरिनरी सिस्टम है, इट हैज दीज कंपोनेंट्स. और कंपोनेंट्स कौन से हैं भाई? 2 किडनीज, नहीं थोड़ा छोटा करके बनाना है. वी हैव 2 किडनीज, और इन किडनीज को हम यूजुअली कहते हैं दीज आर बीन शेप्ड एंड इवेंचुअली दे आर कनेक्टेड टू अ ब्लैडर. अच्छा भाई, ये 2 किडनीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इफ यू कैन सी मी क्लियरली, अगर आप अपनी साइड्स पे ऐसे हैंड्स रखें, आप जस्ट आपकी जहां पे रिब्स क्लोज हो रही हैं, तो जहां पे आपके थम्स आएंगे देयर आर योर किडनीज. तो आपकी बॉडी की डॉर्सल साइड पे, या आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड को डॉर्सल साइड कहेंगे. सो डॉर्सल साइड पे 2 किडनीज प्रेजेंट हैं, और इट्स अ पेयर ऑफ किडनी. सो एक राइट और एक लेफ्ट. सो ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी. सो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से. It's a little bit a tilt. और वो tilt क्यों होता है, क्यों बता रहा हूं, because it is a question कि राइट किडनी थोड़ी सी लोअर क्यों होती है as compared to the left kidney, because लिवर का साइज बड़ा है और लिवर उसको बेसिकली पुश करता है नीचे उस किडनी को, और वो ज्यादा पुश नहीं कर रहा था, हार्डली 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच. अच्छा, एक पेयर ऑफ किडनी हो गया. यहां से जितनी भी फिल्ट्रेशन जाएगी, दीज आर यूरेटर्स.
यूरेटर से सारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनटू ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर थ्रू यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा के ऊपर देयर आर स्पेशलाइज्ड स्फिंक्टर मसल्स। These are voluntary muscles. They control they control the expulsion of the urine. इतने ही पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि मेमेलियन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास। किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स, यूरेथ्रा और स्फिंक्टर मसल्स, सबके रोल आपके सामने है। किडनीज क्या करती हैं? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। यूरेटर जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में दोबारा से समझा दूं, जब आप चाय पुनते हो ना तो वो जो पत्ती ऊपर आ जाती है और चाय निकल आती है नीचे आपके कप में, तो वो जो कप में आई है दैट इज अ फिल्ट्रेट। तो वो फिल्ट्रेट, अगर हम इस केस में आते हैं तो इस केस में फिल्ट्रेट है यूरिन। तो किडनी से जो फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस चला गया और पीछे रह गया फिल्ट्रेट, वो यूरिन, वो थ्रू यूरेटर्स आएगा ब्लैडर में एंड ब्लैडर से बॉडी से बाहर। अच्छा, अगर इसी किडनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ किया जाए, बीन शेप, उसके बाद इसके अंदर होते हैं देयर आर स्पेशलाइज्ड कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़ा था इसका, दीज आर कॉनिकल पिरामिड्स। जो आउटर मोस्ट सरफेस है, ये जो आपको नजर आ रही है, इट इज कॉर्टेक्स। जो इस किडनी की बिल्कुल बाहर वाली लेयर है, इट इज कैप्सूल। जो अच्छा, ये जो आउटर मोस्ट है, इट इज कॉर्टेक्स। तो उसकी जो अंदर वाली है, एक बाहर वाली सरफेस कॉर्टेक्स और इनर सरफेस, अगर मैं दोबारा से बताऊं, आउटर सरफेस इज कॉर्टेक्स एंड इनर सरफेस मतलब इस साइड पे, दिस इज द इनर सरफेस, इट इज मेडुला। मेडुला ऑब्लंगाटा से वो कंफ्यूज नहीं करना, इट इज अ डिफरेंट थिंग। किडनी का जो इनर पोर्शन है उसे हम मेडुला कहते हैं, जो आउटर पोर्शन है इट इज कॉर्टेक्स। अच्छा, इनर पोर्शन, आउटर पोर्शन में तो कुछ भी नहीं है, इट इज ब्लैंक। इनर पोर्शन में हमारे पास, यहां लिखने लगा, इट इज अबाउट 10 to 12 रीनल पिरामिड्स। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन रीनल पिरामिड्स में ही ये जो आपको कॉनिकल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं, बड़ा करके लिखूंगा, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फॉर इंस्टेंस नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। बेसिकली यही वो स्टेनर्स हैं, यही वो पोनिया हैं जहां से सारा ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाता है, स्टेन होता है। सो नेफ्रॉन्स एक्चुअली फिल्टर ऑल द ब्लड। सो इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स में अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनीज के अंदर। सो वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स उस ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सो ब्लड यहां से फिल्टर होके एक ऊपर से वेन आ रही है, व्हिच इज रीनल आर्टरी, जो कि ब्लड किडनीज के अंदर लेके आ रही होती है। सो ब्लड इधर फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद सारा फिल्ट्रेट इस जगह पे इकट्ठा होता है, जो यूरिन है। When I talk about filtrate, it is urine, it is renal pelvis. Once again, blood आ रहा है किडनी में, और वो ब्लड इन सब रीनल पिरामिड्स में से, इन सब कॉनिकल स्ट्रक्चर्स में से पास कर रहा है, और पास करने के बाद वापस जा रहा है बॉडी में, क्योंकि फिल्टर हो गया है। अब वो जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ रीनल पेल्विस में है। सो रीनल पेल्विस से थ्रू यूरेटर वो कहाँ जाएगा? इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से बाहर। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखना है। हमारे सिलेबस में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन डिटेल नहीं है, बट वी विल स्टडी बिकॉज हमारे आगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। फर्दरमोर, इन सारी स्टडी से रिलेटेड आई हैव लेफ्ट सम चंक्स, और वो चंक्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे आपकी वर्कशीट में, जो कि आपको गूगल क्लासरूम में शेयर की जाएगी। एंड दिस वाज enough for today. Have a good day. Allah Hafiz.